at Mumbai, and I'm here to tell you that how we are going to prepare for CCAT English specifically, the topic, the syllabus, and how you're going to have the discussion on that, and then how you're going to score maximum out of it. That will be my first agenda of telling what exactly we are going to do. So the things that we are going to cover over here, I guess you guys have already gone through the syllabus. This section A and B has already been defined, and today is the last date of this discussion. All the videos we have already uploaded on our YouTube channel. You can go through it. Every topic has a different YouTube video we have created that. So today our only focus will be how am I going to prepare maximum nicely to for English, so that I can score. If 15 questions comes, at least I'll be able to score 14 to 15. I don't want any one of my guys over here 63 scoring lesser than 14 or 15. So I'll tell you the tricks and tips. Again, I'll be giving you the PPT in the same video. This year video jab I'll be uploading today or tomorrow maximum. So उसके end में I'll give you the PPT. Go through it because I have tried to keep the PPT as illustrative as I can. PPT point wise नहीं बनाया है. I have created PPT very illustrative. So if you go through it only, you will be able to learn a lot out of it. Okay, there are all tips only. कैसे करना है मैंने mention किया उसमें. Okay, so let's start with. This is a rough syllabus of English. This is what you guys are going to expect कि इसमें से at least हर section related 1 2 questions तो आएंगे. So what we have is a reading comprehension. मतलब एक बड़ा सा पैरा दिया जाता है, उसके नीचे 3 questions होंगे. How we are going to solve it? I'll tell you. Sentence completion, spotting errors, sentence को improvement. This is something new, but you guys can expect one sentence is given to you and what is can be done so that ये sentence और अच्छा लगेगा सुनने में, लिखने में. Okay, that is one thing. Fill in the blanks again can be related to any word fillers, opposite, antonyms or anything that can go over here. Sentence construction and arrangement. Simple. एक सेंटेंस को 4 अलग अलग किस्सों में डिवाइड किया गया है और उनको शफल किया गया है. ओके, आई एम मनोज मोरे को मनोज मोरे स्लैश आई स्लैश एम किया है. So now your role is to arrange I am Manoj More. Okay, something like that. Or it can be a whole paragraph which is divided into 4 different sections, and you guys have to merge it together to look that so that that paragraph looks good, so that that paragraph is readable. वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड क्लोज स्टेट इज सिमिलर टू फिल इन द ब्लैंक्स कि जिसमें आपको एक वर्ड सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. सब्स्टिट्यूशन इज समथिंग, वो वर्ड वहां पे एक एग्जिस्टिंग है उसका बेटर वर्जन यू गाइस कैन एक्सपेक्ट ओवर हियर. एंड देन इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये चारों चीजें आएंगी. इडियम फ्रेजेस सिनोनिम एंटोनिम्स आर काइंड ऑफ दैट कि वो तुमको थोड़ा सा पता होना चाहिए. अगेन दिस इज द ओनली थिंग कि उसमें आपके मार्क्स कम हो सकते हैं because they are kind of tricky ones, idioms, antonyms, and idioms and phrases. But all other 7 options are really good. They can score you really well. Okay, so what I'll do, I'm going to tell you one by one कि इनको solve कैसे करना है. How you going to put a lot of emphasis. के बाद मुझे पता है you guys have hardly how many 5-6 days left over. कल से तो हार्डली 1 2 3 4 राइट, 4 दिन बचे. तो 4 दिन में व्हाट यू गोइंग टू डू, आई टेल यू. बेस्ड ऑन दिस ओनली यू प्रिपेयर. ओनली इन 4 days how am I going to prepare, that's it. So I will start with, I'll try to finish it so that we can have a discussion on how we're going to prepare. First one will be reading comprehension. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब एक बड़ा सा पैरा दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पैराग्राफ, इंटरप्रेट एंड इवैल्यूएट कि व्हाट एग्जैक्टली दैट राइटर इज गोइंग टू से. वो राइटर के मन में क्या चल रहा है. दैट वी गाइस आर ओनली अटेंशन ओवर हियर इज दिस मच. तो बस उतना ध्यान में रखो कि मुझे वो राइटर का अंडरस्टैंडिंग करना है और उस हिसाब से क्वेश्चन को आंसर करना है बस. ना वी ऑल हैव डन इट. मुझे पता है सब लोगों ने बोला अरे सर ये तो हम कर चुके हैं, इसमें क्या नया है. What my suggestions will be, we have two tricks over here. What I used to do is I used to read questions first, then I used to go back. Okay, पैरा को जाता था, फिर मैं क्वेश्चन का जो पॉइंट है उसको ढूंढता पैरा में, अरे यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या करके, and that was taking a lot of time. Believe me, that is a time consuming process. The second thing that I'm going to do is firstly पैरा को read कर लो.
पैरा को अंडरस्टैंड करो, देन विल मूव फॉरवर्ड. हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, लेट मी टेल यू. ओके, रीडिंग ऑपरेशन के टिप्स क्या है कि हाउ एम आई गोइंग टू सॉल्व रीडिंग ऑपरेशन. फर्स्ट वन, क्वेश्चन को जंप मत करो. क्वेश्चन को जंप करोगे तो यू विल गेट स्टक, कि वो दिमाग ना क्वेश्चन के हिसाब से काम करना चालू करता है. एंड व्हाट कॉजेस इट, इट कॉजेस अ ट्रबल, कि यार एक क्वेश्चन में वो नहीं था, मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है, अरे यार मेरा टाइम वेस्ट गया. 2 मिनट गए, 3 मिनट गए, 4 मिनट, अरे यार 5 मिनट निकल भी गया और मेरे को एक क्वेश्चन भी नहीं हुआ और पैरा भी रीड नहीं हुआ. सो बेटर, माई सजेशन फ्रॉम माई साइड इज ऑलवेज रीड द पैरा. हाउ, फर्स्ट वन, एक पैरा को रिव्यू करो. नाउ स्किमिंग एक प्रोसेस होती है. व्हाट इज स्किमिंग? स्किमिंग मतलब फास्ट रीडिंग होता है. जैसे कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, एकदम जुम 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 फास्ट में. स्किमिंग गिव्स एन आइडिया कि वो पैरा में चल क्या रहा है. स्किमिंग कैन बी डन विद इन 30 सेकंड्स, 20 सेकंड्स. एक फास्ट एकदम वर्ड, इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडिया सब ब्रदर्स एंड सिस्टर, आई लव माय कंट्री, मुझे पता है ये प्लेज है. तो इंडिया, माय कंट्री, ऑल इंडियंस, ब्रदर्स सिस्टर्स, ये 4 वर्ड्स ही देख के मुझे पता चल गया ये इंडिया की प्लेज है. राइट? So similarly, this paragraph if I'm going to read, उसको skim करो, fast fast में read करो, so that you come to know अरे हाँ इसमें ये कुछ कहना चाहता है. So now there is some para related Amazon jungles. Amazon jungle, तो आपको वो imagination चालू हो जाएगी दिमाग. Amazon jungle मतलब animals आएंगे, वाइल्ड लाइफ आएगी, प्लांट्स आएंगे, मे बी प्रे आएगा, उसके हिरन के पीछे ये दौड़ रहा है, हो रहा है. यू विल स्टार्ट इमेजिनिंग इट. सो व्हाट विल इट विल ईज आउट द नेक्स्ट प्रोसेस. नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? अंडरस्टैंडिंग दैट पैरा, कि आपको पैराग्राफ अंडरस्टैंड करने में ज्यादा आसानी है. सो स्किमिंग करो फर्स्ट वाला इंट्रोडक्शन पैरा का फास्ट. ओके, देन पर्पस क्या है उस पैराग्राफ का, वो पूरे फर्स्ट पैराग्राफ में ही समझ आता है. क्या है पर्पस? एक तो वो एनालिटिकल है कि जिसमें कुछ डेटा डिस्कस हो रहा है. आर्ग्यूमेंटिव है कि नहीं, देयर आर टू टॉपिक जिसमें झगड़ा चल रहा है. और जैसे इंफॉर्मेटिव, दैट इंडिया इज अ कंट्री वेयर ऑल पीपल लिव इन पीस एंड हार्मनी. ओके, तुम लोगों को वो पता चल जाएगा. सो स्किमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीव्यू करो फास्ट में, इट विल ट्रिगर योर थॉट प्रोसेस, इट विल बी मच इजियर फॉर यू कि बाबा मुझे आगे क्या करना है. सेकेंड थिंग, टर्न द हेडिंग इनटू क्वेश्चन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको नीचे क्वेश्चन में मिलेंगे. इफ देयर आर हेडिंग्स व्हिच आर रिटन, कुछ कुछ हेडिंग्स होते हैं कि जैसे कि एक पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ की शुरुआत में कुछ कुछ हेडिंग्स मिलेंगे आपको, लाइक एंशिएंट ग्रीक करके कुछ तो पैराग्राफ है. तो एंशिएंट ग्रीक में यू विल कम टू नो सोसाइटी, देन एजुकेशन, देन लाइब्रेरी, देन ये वो. तो वो क्वेश्चन मार्क करो कि लाइब्रेरी एग्जैक्टली वो लाइब्रेरी के अंदर कहना क्या चाहता है, एजुकेशन व्हाट इट गोइंग टू टेल. ओके, सो यही रफली क्वेश्चन है ना आपको नीचे मिलेंगे. थर्ड थिंग, रीड एक्टिवली. अभी ये दो कर लिया, अभी थोड़ा सा इंटेंसली रीड करना चालू करो. इंटेंसली मतलब वर्ड स्किप मत करो. इन स्किमिंग वी स्किप द वर्ड्स, अरे ये हो गया काम हो गया मेरा. इन रीडिंग एक्टिवली आई विल एक्चुअली रीड द पैरा फास्ट बट एक्टिवली. पहले तो नाउ वी डोंट हैव एनोटेट के लिए हमारे पास वो पेन पेंसिल तो नहीं होगा बिकॉज विल बी डूइंग ऑनलाइन. बट अगेन यू कैन यूज अ पेन और रफली ऐसे नीचे नीचे करते जाओ. ओके, सो स्क्रीन को खराब मत करना बिकॉज दैट सेंटर विल आस्क यू मनी. बट रफली उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे करते जाओ. ओके, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे उस पर ज्यादा फोकस करना. विच आर द वर्ड्स? हाउएवर, मोरओवर, इन कॉन्ट्रास्ट. क्या है भाई, ये वर्ड आ गए ना तो मत भेद हो चुका है कि समथिंग इज डिफरेंट. ये कुछ अलग कहना चाहता था, ये कुछ अलग कहना चाहता. नाउ द क्वेश्चन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी हियर फ्रॉम. ओके, जब भी कुछ कंफ्लिक्टिंग वर्ड दिखे, हेवी वर्ड दिखे, एंड सिंपल इन माय केस ऐसा वर्ड दिखे कि जो मुझे पता नहीं है, तो पक्का उसको याद रखूं कि नीचे कहीं तो क्वेश्चन में आने वाला. तो कीप इन माइंड कि ऐसा कुछ होने वाला. ओके, द नेक्स्ट वन, मार्जिन द नोट्स. की क्या है कुछ कंफ्यूजन है, कुछ सिंबल्स है, कुछ डिस्कशन है कि पैराग्राफ में कुछ चल रहा है ना, उसका बस एक मार्जिन करके रखो. ना वो मार्जिन आप रफ पेपर में करो. क्या करना है कि एक पैराग्राफ पहले, व्हाट आई रिमेम्बर, सेडा के जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो रफली 2 या 3 पैरा के होंगे. चलो 2 पैरा तो पक्का हो. तो क्या करो कि आपको पेन और पेपर दिया जाता है इन एग्जाम ऑल्सो यू गिव पेन. सो लिखो पैरा 1, उसका मीनिंग रफली एक मीनिंग कि ये पैरा कहना चाहता है कि उसमें राइटर ने ये कहा है. पैरा 2, इन दिस पैरा राइटर वांट्स टू से दिस. तुम्हारा खुद का अंडरस्टैंड व्हाट विल बी, ये क्वेश्चन आंसरिंग के लिए आसान है. नेक्स्ट वन, चंक एंड समराइज. मतलब अभी बड़े चीजों को इकट्ठा करना चालू करो. मतलब क्या कि तुम लोगों ने पैरा पढ़ा ना, पॉज लो, रुक जाओ, ये पैरा खत्म हो चुका है ना, ये पैरा ऐसा कहना चाहता है कि दिस इज अबाउट दिस दिस दिस.
तुम्हारे एक दिमाग में प्रोसेस बन जानी चाहिए, अच्छा ये ऐसा हो रहा है क्या, चलो ठीक है बाजू को रख देता हूँ। सेकेंड पैरा, अच्छा ये ऐसा हो रहा है क्या, ये बाजू को रख देता हूँ। दिस विल बी इजियर व्हेन क्वेश्चन जब आएंगे ना, तो क्वेश्चन में आपको वापस ऊपर आना पड़ता है क्वेश्चन में पढ़ने के बाद। सो दैट टाइम आपको याद रहेगा, अरे ये पैरा 1 में लिखा है तो मैं पैरा 2 पढ़ू ही, टाइम बच गया आपका, राइट। सो डू रिमेंबर कि वट एवर रिटर्न इन क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन 1 और 2 पैरा जो है ना, तो आपको कनेक्ट करने में ज्यादा आसानी होगी। ये कब होगा, जब आपने छोटे से नोट्स बना के रखे यहाँ चाहिए इसके लिए, ये इसके लिए। ओके, नेक्स्ट वन, वॉच द सिग्नल्स। अगेन इंपॉर्टेंट, सिग्नल्स क्यों, क्योंकि ये सिग्नल्स ऐसी चीजें हैं कि जिसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना। द राइटर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, द राइटर वाज वेरी हैप्पी लिविंग हिज लाइफ, देन ही गॉट मैरिड। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि उसकी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, उसके बाद उसकी शादी हो गई। सो व्हाट हैपेंड, देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब कुछ तो अलग हुआ कि जिसकी वजह से मे बी ऊपर नीचे कुछ हो गया उसकी लाइफ। सिंपल। नाउ नीचे क्वेश्चन होगा, व्हाट वाज द रीजन द राइटर्स हैप्पीनेस वेंट अवे। अगेन hypothetical, don't connect to anything. He got married, definitely. So that can be thing over here. So contrast कुछ अलग हो रहा है, however, although, but, पक्का, कहीं तो आपको पॉज करना है और याद रखना है, ये वर्ड आएगा क्वेश्चन आएगा नीचे। Addition, moreover, furthermore, and addition. Writer was telling that he has done M.Tech in something. In addition to do, he has taken admission to PhD also. नीचे क्वेश्चन होगा, now tell us what is the current status of writer's education. आप एमटेक लिखोगे गलत हो जाओगे, बिकॉज ही इज करेंटली परस्यूइंग पीएचडी। सिंपल। नेक्स्ट वन, कॉजेस एंड इफेक्ट, बिकॉज देयरफॉर एज अ रिजल्ट, ये पक्का आपको पॉज मारना है इसमें। दिस इज द पॉजेस व्हिच विल गिव कि इसके बाद वाला जो पार्ट होगा ना क्वेश्चन में होगा, दिस हैपेंड इन राइटर्स लाइफ बिकॉज, तो बिकॉज जो होगा ना नीचे, व्हाट वाज द रीजन दिस हैपेंड इन राइटर्स लाइफ। ओके, एंड दिस, ये जो है सारी चीजें दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन का टाइप कैसे आना है नीचे से। ओके, देन आपको क्वेश्चन को स्ट्रैटेजिकली टैकल करना है। हाउ, एक तो अब ये पढ़ के हो गया अपना, यहाँ तक हो गया कि हमने पैरा पढ़ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। अभी नाउ द क्वेश्चन आ गए। पहले क्वेश्चंस को फटाफट एक बार ग्लांस कर लो, बस आगे स्किमिंग याद है पहले जो अपन ने किया था, फटाफट देख लो कि एक तो टाइप होगा एमसीक्यू होगा, या फिर नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ये वो क्वेश्चंस वाले होंगे, या फिर उसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स होता है कि राइटर वांटेड टू से दिस विथ ही यूज्ड अ पर्टिकुलर वर्ड, कुछ तो ब्लैंक होगा। तो टू एक्सप्रेस द इमोशंस ऑफ राइटर्स फीलिंग ही यूज्ड अ वर्ड ब्लैंकनेस। कौन सा वाला ब्लैंकनेस दैट यू गाइस, वो कब याद रहेगा आपको, जब आपने पैराग्राफ अच्छे से पढ़ा है। Okay, so there can be question related to fill in the blanks होगा, MCQ हो सकता है, anything you can expect. Okay, for that understanding of para is important. पहले क्वेश्चन को पढ़ लो कौन से टाइप का क्वेश्चन है, देन ओनली ऊपर जाके एक बार फटाफट अंडरस्टैंड कर लो क्वेश्चंस को समझ के, एंड अपना वाला प्रेडिक्शन खुद लिख लो वहां पे, बिकॉज वी हैव रेड द पैरा फॉर 2 3 4 मिनट्स। 10 मिनट अगर आपने दे चुके हैं उसके लिए, तो 10 मिनट में से 3 4 मिनट में पढ़ चुका हो पैरा, पढ़ चुका हो मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अरे बाप रे ये था क्या, हाँ चलो। देन जस्ट फटाक से गो टू दैट पैरा का वो पार्ट पे जाओ, देखो पढ़ो, हाँ हो गया, यही तो आंसर है, राइट। ओके, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन के टाइप्स, ये यू हैव टू प्रिपेयर इन एडवांस। क्वेश्चन के टाइप्स मतलब एक तो ये जो मैं अभी तक बोल रहा था कि एक तो मेन आइडिया, द मेन आइडिया ऑफ द प्रोजेक्ट, द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ वाज करके 4 ऑप्शन दिए जाए। हाउ यू गोइंग टू अंडरस्टैंड इट, अगेन इंट्रोडक्शन पढ़ो और एंड पढ़ो, उन दोनों को थोड़ा कंबाइन करो, उससे मेन आइडिया का थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है, थोड़ा सा अंदाजा। देन अगेन बीच वाला जो पैरा है उसका चंक आपके दिमाग में बैठ चुका है, उसको कॉम्बिनेशन करो, मेन आइडिया इज आउट ऑफ दिस 4। अगेन उसमें से जो नहीं उसको ऑड मैन आउट निकालो, देन यू विल गेट द मेन आइडिया। ओके, डिटेल इन, ये इन्फरेंस है ना, मोस्टली पीपल क्या करते हैं ना कि मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने लिख दिया, मत करो। अगर पैराग्राफ में वो चीज मेंशन नहीं है, कि जैसे कि आपने सपोज ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव डन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ओके, तो ऐसा रिलेटेड टू एआई का अगर कोई पैरा आता है तो आई एम वेरी हैप्पी, अरे वाह एआई का पैरा है, मुझे तो सब नॉलेज है। बट अगर उसमें कुछ मेंशन नहीं है उस पैराग्राफ में, एंड योर
गिविंग योर ओन कंक्लूजन इनटू दिस वन ना, दैट कैन बी हजार्डस सिंपली। क्यों? क्योंकि उसमें मे बी एक पैराग्राफ में कुछ अलग लिखा होगा और आपने अलग आंसर दिया, दैट कैन हैपन। सो अपना नॉलेज अपने पास रखो, पैराग्राफ का नॉलेज यूज करो एंड देन ओनली सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है। लास्ट वन, ऑथर का टोन और पर्पस क्या है? इधर वो निगेटिव है, पूरा बंदा एकदम है कि भाई उसकी लाइफ में कुछ चल ही नहीं रहा है, पूरा निगेटिव बंदा है। बंदा है कि क्रिटिकली बात कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, इंथुजियास्टिक है, वाओ वेरी नाइस, अच्छी बातें चल रही है, या फिर एकदम न्यूट्रल है, हाँ दिस इज द प्रोसेस, दिस हैपेंस लाइक दिस। यू हैव टू अंडरस्टैंड बिकॉज ये क्वेश्चन आंसर करने में ज्यादा आसान है। अगेन रफली हमारे केस में तो ये नहीं है कि टाइम मैनेजमेंट में हमें बहुत सारा टाइम नहीं मिलेगा, विल गेट हार्डली 10 मिनट्स टू सॉल्व वन पैरा। अपने पास मैक्सिमम एक दो पैरा आएंगे, दो पैरा से आगे तो अब तक कभी भी नहीं आए। वन पैरा यू गाइस कैन एक्सपेक्ट डेफिनेटली। तो एक पैराग्राफ आ रहा है तो उसमें 3 क्वेश्चंस तो मिनिमम हो, याद रखो एक पैराग्राफ 3 क्वेश्चंस, ये कॉम्बिनेशन बनेगा। सो नाउ आप खुद बोलो कि अब अगर 3 ही क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन को पढ़ने के लिए मुझे 4 मिनट मैंने साइड को रख दिए, तो 6 मिनट आई कैन स्पेंड नॉट पैराग्राफ। दैट इज योर कंस, आपकी स्पीड कितनी, अंडरस्टैंडिंग कितनी, उस हिसाब से 3 क्वेश्चन के लिए 3 मिनट, 7 मिनट फॉर अंडरस्टैंडिंग द पैराग्राफ। दैट इज अप टू यू, दैट इज अप टू यू। व्हाट यू नीड इज राइट आंसर्स। सो ये अपना कॉम्बिनेशन खुद से बनाओ। ठीक है। एंड प्लीज अगर रुके हो कहीं पे स्किप मार दो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ यू आर स्टक एट वन क्वेश्चन, कितना भी करो कुछ भी करो, वो क्वेश्चन वैसे भी अगर दिमाग में अड़ा पड़ा है तो अड़ा ही पड़ेगा। सो बेटर इज दैट लीव इट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन में उसका आंसर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन, बिल्ड द बैकग्राउंड ऑफ नॉलेज। आपके फेमिलियरिटी के लिए मैं बोल रहा हूँ, बस फेमिलियरिटी मतलब अरे बाबा हाँ ये थोड़ा बहुत पास वाली चीज है, ये पैराग्राफ मैंने सब पहले कभी पढ़ा था उससे कंबाइन हो रहा है, कंबाइन करो, बट खुद का नॉलेज यूज मत करो। डोंट यूज योर ओन नॉलेज, दिस आर टू डिफरेंट थिंग्स, कीप देम असाइड। दिस इज डिफरेंट, योर नॉलेज इज डिफरेंट। बस अभी ये पैराग्राफ क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में बताओ, बाकी वी आर नॉट कंसर्न ऑफ, है ना, खुद का नॉलेज नहीं देना उस पैराग्राफ में। ओके, सिंपल। आरसी का एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं अभी, एक सिंपल। आई जस्ट अंडरस्टैंड क्या हो रहा है इसमें। इन रिसेंट ईयर्स अर्बन रूफटॉप हैव इंक्रीजिंगली बिकम साइट फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स। ठीक है, क्या बात हो रही है कि वेजिटेबल छत पे उगाने की बात हो रही है, अंडरस्टूड। दिस शिफ्ट, this shift stems from both limited ground plants and growing interest in locally sourced food। हाँ, इसमें कुछ पॉजिटिव बात हो रही है रिलेटेड टू रूफ टॉप फार्मिंग। जो रूफ पे जो फार्मिंग होती है ना, उस पे पॉजिटिव बात हो रही है सेकेंड सेंटेंस में, इतना पता चला मुझे। मोर ओवर का मतलब हाँ कुछ अच्छा एडिशन हो रहा है। मोर ओवर रूफटॉप गार्डन्स कैन रिड्यूस द बिल्डिंग्स एनर्जी कॉस्ट बाय प्रोवाइडिंग नेचुरल इंसुलेशन। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ रूफटॉप फार्मिंग के बारे में बोल रहा है, फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन बोल रही है कि बाबा उसमें कुछ फायदे हैं, थर्ड लाइन उसमें कुछ फायदे को ऐड कर रही है, फोर्थ लाइन क्रिटिक्स। क्रिटिक्स मतलब ऐसे बंदे जो निगेटिविटी फैलाते हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू, क्रिटिक्स आर लाइक दोज आर द वंस हु एनालाइज द सिचुएशंस। हाउएवर, हाउएवर आ गया मतलब रुको, ये जब जो जो अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें चल रही है ना उस पर रोक डालो, अभी कुछ तो डिफरेंट डायरेक्शन में जाने वाले हैं अपन। Critics, however, want that without proper structural assessment, added weight and water runoff could damage older buildings. Sentence about rooftop farming, positive sentence, more positive sentence, and then the opposite side of those positive sentence. That's a negative side of the sentence. समझ आ गया? How you are going to read it? Moreover, however, in addition to, ये सब मैंने पीपीटी में मेंशन किया है पहले से। I'll be giving you PPT, don't worry. So you just have to remember it. ऐसा कुछ आ रहा है ना, ये आसान होगा अभी मुझे अंडरस्टैंड करने। अब मेरे दिमाग में बैठ गया कि बाबा ये पैराग्राफ कुछ चार एक या दो क्वेश्चन भी आ गए तो मुझे पता है कैसे आंसर करना है। बट इन एग्जाम एक्सपेक्ट अ लिटिल बिगर पैराग्राफ। जो अभी मैं टेस्ट दे रहा हूँ ना, उसमें आप एक्चुअली सेट अ पैराग्राफ काइंड ऑफ लार्जर, सो यू विल अंडरस्टैंड कि थोड़ा टाइम जाएगा उसको अंडर। ये तो मैंने हार्डली 30 सेकंड में पढ़ लिया। सो यू विल नीड एटलीस्ट 2 मिनट्स 3 मिनट्स टू अंडरस्टैंड, देन ओनली प्रोसेस। पैराग्राफ अगेन टेलिंग यू गाइस कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 20-25 लाइन्स, 30 लाइन्स, इतना बड़ा पैराग्राफ होगा, मतलब एक दो या फिर तीन ऐसे रफली कॉम्बिनेशंस बनेंगे उसके। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पहले से। डन। सो आरसी में दिस इज ऑल अबाउट आरसी, जितना अच्छे से करो बस 3 से 4 क्वेश्चन आपको एक ही टाइप में मिल जाएंगे। मतलब एक पैराग्राफ करोगे ना, एक एक टाइप करोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन हो गए, तो दैट मीन्स आपके
रफली अगर 15 आते तो 20% तो मार्क्स यही पे मिल गया आपको। ओके ओके, नेक्स्ट वन वी हैव सेंटेंस कंप्लीशन। दिस इज अगेन, these आर वेरी सिंपल वर्ड्स बट स्टिल यू नीड अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सेंटेंस कंप्लीशन, एक तो वर्ड को चूज करना है अच्छे से और उसको विदाउट चेंजिंग द ग्रामर एंड मीनिंग, आपको उसको फिट करना है। हाउ? नेक्स्ट वन, पहले सेंटेंस को अच्छे से पढ़ लो कि क्या कहना चाहता है सेंटेंस, देन पक्का उसमें ग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करो, मतलब वो टेंस में कौन से जा रहा है, उसमें डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसमें वॉइस कौन सा है, ये कौन सा है, वो कौन सा है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके लो। इंग्लिश इज समथिंग वी हैव लर्न सिंस सो लॉन्ग, सो यू विल बी एबल टू ग्रास्प इट सून, बट स्टिल थोड़ा लगता है ना, अंडरस्टैंड करने में टाइम जाता है। सो उसको थोड़ा ग्रामेटिकल पहले समझ लो, सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है, निगेटिव जा रहा है, ऊपर मतलब किसी के बारे में अच्छी बात कर रहा है, बुरी बात कर रहा है, सो उसके हिसाब से कंप्लीशन में ज्यादा आसानी। ओके, देन स्पॉट द सिग्नल एंड कनेक्टर वर्ड्स। कनेक्टर वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने अगेन बोला था ये वर्ड आपको बहुत सेव करेंगे, इवन आई आरसी आल्सो, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आल्सो, एंड हियर आल्सो लुक फॉर द कॉन्ट्रास्ट वर्ड, बट अल्दो। ओके, पॉज आ रहा है मतलब अभी सेंटेंस का मीनिंग ऐसा था तो ऐसा होने वाला है, सिंपल तो अंडरस्टैंड इट। कॉज एंड इफेक्ट, बिकॉज इसकी वजह से ये हुआ, देयरफॉर ऐसा हुआ था। ओके, एंड लास्ट वन इंटेंसिफायर, स्पेशली एंड ओनली। ये वर्ड्स आते तो पक्का इसके आगे वाला है ना पार्ट, कुछ तो एडिशन देगा, समथिंग दैट इज फर्स्ट पार्ट में ये था, सेकंड पार्ट में ये वर्ड्स आ गए, थर्ड पार्ट में बिल्कुल भी उल्टा होने वाला है। याद रखो इन केस ऑफ कॉज इफेक्ट्स ऑल्दो वर्ड, इनकी वजह से। ओके, इसकी वजह से आपको सेंटेंस का पॉजिटिविटी, निगेटिविटी, स्ट्रॉन्ग, वीकनेस, रिलेशनशिप्स क्या Sound. है। यस, रियलमी, ओके, यू स्कैर्ड मी। ओके, सो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, okay, so could you please pause yourself? Yeah, yeah, the next one we have your खुद का एक वर्ड पहले ध्यान में लो ना। अभी कैसा होता है ना कि देयर आर 4 डिफरेंट ऑप्शंस गिवन, नॉट नेसेसरीली आपको पता होंगे वो, बट आपको पता होता है कि ये जो है ना तो वो फिट हो सकता है कि अभी सब कुछ हैप्पी हैप्पी चल रहा है सेंटेंस में, तो यू ऑलरेडी नो कि दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव वर्ड समवेयर। सेंटेंस नेगेटिव या फिर क्रिटिक्स जा रहा है तो आपको पता है थोड़ा नेगेटिव वाला वर्ड बैठने वाला है इसमें। ओके, सो ये थोड़ा सा इंट्यूजन अपने दिमाग में चालू कर दो कि दिस इज समथिंग गोइंग टू हैपन ओवर हियर, एक तो पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, बेस्ड ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। ओके, देन कॉज ऑफ connotations, ये क्या होते हैं? connotations आर द कंबाइंड वर्ड्स। जैसे कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं ना वो हमेशा साथ साथ आते हैं, आई एम हेवी लिफ्टर, मतलब जिम करते हुए हेवी लिफ्ट करता हूँ, आई एम ए हेवी ड्रिंकर। ओके, हेवी एंड ड्रिंकर, दीज आर द वर्ड्स गोइंग टू बी टुगेदर। ओके, दैट्स अ ब्यूटीफुल स्मेल, दैट्स अ नाइस स्मेल। ओके, ये जो चीजें ना, जो वर्ड्स एक दूसरे के साथ हमेशा कनेक्ट होके आते हैं ना, उनको साथ में पकड़ो, वो एक तो पॉजिटिविटी दिखाएंगे या निगेटिविटी दिखाएंगे, दीज टू वर्ड्स आर नॉट गोइंग टू बी अगेंस्ट ईच अदर, तो उनको अंडरस्टैंड करो। Yeah, I'm giving you example of that also. Don't worry. Example में नेक्स्ट वन एलिमेंट, पहले तो ऐसे निगेटिव मतलब ऑप्शंस को निकाल दो, 4 ऑप्शंस में से कि विच आर नॉट गोइंग टू फिट इनटू दिस वन। जैसे मैंने बोला था सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है, निगेटिव वर्ड्स का मीनिंग ही नहीं है वहां पे, कट मार दो। ठीक है, सो लाइक 4 ऑप्शंस में से 2 निगेटिव है और 2 पॉजिटिव है, तो पक्का है कि 2 पॉजिटिव में से कोई आंसर होने वाला है। जो ओनली 50-50 ऑप्शन बच गया, फिर आप अगर आपको नहीं भी आता तो इन दोनों में से कोई एक पक्का आंसर होने वाला है, राइट? सो वो करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, वॉच द कोलोकेशंस अगेन एंड इडियम्स। जैसे मैंने बोला था कोलोकेशंस मतलब जो वर्ड हार्श साथ साथ में आते हैं, मेक एन एफर्ट, हार्श क्रिटिसिज्म, अटर कियोस, ये वर्ड्स है ना एक दूसरे के साथ आएंगे और वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो एक दूसरे के सॉफ्ट क्रिटिसिज्म होता ही नहीं है, क्रिटिसिज्म इज समथिंग यू हैव टू क्रिटिसाइज नाइसली टू नेक्स्ट पर्सन, तो हार्श ही होगा। ओके, द नेक्स्ट वन मेक एन एफर्ट, तो पुट एन एफर्ट इज आल्सो वर्ड। ओके, सो डू एन एफर्ट तो हम यूज नहीं करते, सो मेक एन एफर्ट, पुट एन एफर्ट, सो ये वर्ड जो है ना एक दूसरे के साथ आते हैं, सो यू नो दैट दिस इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर। ओके, ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स चॉइसेस। अभी कुछ कुछ इसमें ना आपको यू विल गेट अ 2 ब्लैंक्स या 3 ब्लैंक्स भी मिलेंगे एक ही सेंटेंस में। इफ यू आर गेटिंग मोर देन 2 to 3 ब्लैंक्स तो डरो मत पहले। व्हाट आई डू, आई फोकस ऑन फर्स्ट ब्लैंक फर्स्ट, पहले जो ब्लैंक है उस पर फोकस करूंगा,
दूसरा ब्लैंक है, फिर तीसरा ब्लैंक है। नाउ एक बार फिर मैं गो थ्रू करूंगा कि तीनों अच्छे से बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे, क्योंकि फर्स्ट ब्लैंक एंड सेकंड ब्लैंक नॉट नेसेसरीली द सेम मीनिंग देंगे। जैसे कि कोई सेंटेंस है और जिसके बीच में हाउ एवर आ रहा है, या फिर कोई सेंटेंस जिसके बीच में बट आ रहा है, बट आ रहा है तो आपको पता है कि ये सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है, बट के बाद वाला सेंटेंस निगेटिव जाएगा। सो नॉट नेसेसरीली कि ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के साथ फिट बैठेंगे। सो चॉइस वन, चॉइस टू और चॉइस थ्री ऑफ ब्लैंक्स नॉट नेसेसरीली सेम टोन में जाना है, दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टोन्स, ये रिमेंबर करना। नेक्स्ट वन, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्या होता है? द प्लेग्राउंड वाज डॉट डॉट बट डॉट डॉट सो किड्स बोथ प्लेड फ्रीली एंड स्टेड सेफ। चलो मैंने पढ़ तो लिया अच्छे से। नाउ एनीवन वांट्स टू आंसर? You guys are preparing for tests, you should know this. That can be wrong also. मेरा खुद का 10 बार wrong हुआ है B. A. B. B. That's nice. Okay. Then anyone? Okay. I couldn't see your face or name you mentioned, but B is right. सर बी। Yeah, definitely. B is right. Q. पहले तो जाके ना सेकंड सेंटेंस पढ़ो। सो किड्स बोथ प्लेड फ्रीली एंड स्टेड सेफ। फ्रीली खेला मतलब उनको अच्छी जगह मिली, फ्रीली खेले, छोटी छोटी जगह में नहीं खेला उन्होंने। स्टेड सेफ मतलब वो अच्छा था, सिक्योर था। सो डेफिनेटली दिस इज द आंसर, दैट स्पेशियस एंड सिक्योर। अगेन इसमें से सब कुछ बैठेगा, इफ यू गाइस कैन थिंक अबाउट इट, सब कुछ बैठेगा कब? जब सेकंड सेंटेंस नहीं है यहाँ पे। इफ देयर इज नो सेकंड सेंटेंस तब ये बैठेगा सब कुछ। बट योर सेकंड सेंटेंस इज टेलिंग यू कि बंदे फ्रीली खेले बच्चे, और वो सेफ भी थे। तो फ्रीली खेलने के लिए उनको अच्छी जगह चाहिए थी, स्पेशियस चाहिए थी और सिक्योर चाहिए। Okay, all other options are getting completely out of box when these two words are supporting us. तो सेंटेंस कंप्लीशन में कुछ कुछ आंसर्स आपके सामने रहेंगे, यू जस्ट हैव टू कीप योर आईज ओपन। आंखें खुली रखो, देन ओनली गो फॉर इट। अरे यार दिख गया, द प्लेग्राउंड वाज ब्रोकन एंड डेंजरस, एम्प्टी एंड डल हो सकता है, लिख दिया धड़ाम से निकल गया। क्यों भाई? पहले पढ़ो, रीड द सेकंड सेंटेंस, देन ओनली गो फॉर फर्स्ट वन। ओके, ये सिंपल। अगेन इन टुडेस टेस्ट आई हैव पुट सो मेनी क्वेश्चंस ऑन दिस वन, प्लीज एक बार आप फिर कर लेना। नेक्स्ट वन, स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर यू हैव टू फाइंड कि गलती कहाँ पे है। तो गलती कैन बी ग्रामेटिकल, punctuations, usage or anything. गलती is something where your grammar is most of the time getting checked. Okay? सिडैक में स्पेलिंग वाली गलती मोस्टली नहीं आएगी, सो प्लीज ऐसा मत ही सर प्लीज 1 मार्क तो मेरा क्वेश्चन इसमें मिल ही जाएगा, 3 मार्क्स की स्पेलिंग वाली गलती। मोस्टली ये क्वेश्चन इतने आसान नहीं होंगे, सो डोंट थिंक अबाउट इट। या स्पेलिंग वाली गलती होगी तो पक्का मेरे को 1 मार्क मिलेगा। Grammatical, usage and punctuation. These three are you going to expect over here. Minimum. These are the minimum 3 types you can expect over here. Again, tips. पहले तो पूरा सेंटेंस पढ़ लो, रीड द होल सेंटेंस दैट इट्स गिविंग यू क्या चल रहा है सेंटेंस में। अगेन ये क्या चल रहा है का थीम है ना, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश, बिकॉज अगेन वी आर नॉट फ्रॉम ब्रिटेन और एनीथिंग, वी आर एंड आवर मदर टंग्स आर नॉट इंग्लिश आल्सो, सो वी आर स्टिल लर्निंग इंग्लिश। सो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाबा फटाक से एक बार देख लिया आ जाएगा, नहीं आता वो। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड इट, ग्रास्प इट, देन ओनली आंसर इट। ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू, बहुत बार ऐसा होगा ना कि क्वेश्चंस लगेंगे यार ये तो मैंने पक्का किया था, सही किया था, दे आर नॉट डेफिनेटली राइट। सो टेक योर टाइम, देन ओनली स्पॉट। ओके, देन सेकंड थिंग, स्पॉटिंग एरर्स में ऐसा होगा ना कि आपको पूरा सेंटेंस दिया जाए, सो यू डोंट नो एरर कहाँ पे है, तो जहां जहां लगता है वहां पे कट मारना चालू करो सेंटेंस को। सेंटेंस छोटी छोटे सेगमेंट्स में कट मारो, देन ओनली ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। If you're reading a whole sentence and then trying to solve it, no. Read करो, छोटे छोटे कट में डिवाइड करो, then only go for it. You will get the answer. Now, ये तीसरा वाला is very important. I'm again uploading the PPT, but read it very nicely. Know your common pitfalls. ये पक्का एरर वाली चीजें हैं। ये है ना, ये चीजें एरर देगी। कौन सी? सब्जेक्ट एंड वर्ब का एग्रीमेंट। ओके, कैसे? द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज आएगा या आ रहा है, ये आपको बताना चाहिए। दिस इज अ ग्रामेटिकल चेक। द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज आर।
The list of items is. Is. I'm talking about list, not items. I'm talking about list. The list of items. एक ही list है. एक ही list के ढेर सारे items की एक list है. So that is. Are you getting it? ये अगेन इंपॉर्टेंट है बेटा. जो भी आपने अभी आंसर दिया ना, थोड़ा थोड़ा टाइम लो. अपन किसके बारे में बात करें? लिस्ट के बारे में, नॉट द आइटम्स. ओके. वर्ब टेंस एंड फॉर्म. वर्ब जो है ना, उसके टेंसेस और फॉर्म क्या होता है? शी हैज रोट और शी हैज रिटन. हियर शी हैज रिटन. Written. शी हैज रोट नहीं आता, ये आपको थोड़ा पढ़ने के बाद आ जाता है. प्रोनाउन प्रेफरेंसेस एंड केस. बिटवीन यू एंड between you Me. and Me. between you and Me. that's good. Between you and me, all the things are going to be same as this because you betrayed me or something like that. Sentence that's out. Okay. Next one, parallelism. Parallelism again very important. He likes hiking, swimming and biking. ऐसा होता है. Biking is a word. No, sir. No. To bike. Okay, to biking नहीं होता. Biking is not a word. पर flow में अपना हो जाता है ना. Liking swimming है तो चलो biking को भी टिक कर देते. Don't do that. Take a time, read it, then only move forward. And then misplaced modifier. Misplaced means running down the street, the mailman was late. Okay, running down the street, the mailman was late. इसमें गलत क्या होगा आप मुझे बताओ. No? And I put the same question in this also, a test also. Sir, it can be like the mailman was late while running down the street. Exactly, right, while running down the street. Again, ये वाला जो टाइप होगा, you already know this. ये वाला जो टाइप होगा ना, well, you will be asked to use the fillers also. ये वाला टाइप. So that fillers will be suggested along with the misplaced modifiers. मतलब आपको ऊपर नीचे सेंटेंस को भी कट करके ऊपर नीचे करना है and the fillers should be asked. This is the type you can get confused. So better चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ो. The best one suits you guys can choose it. Okay? ये वाले क्वेश्चंस मैंने एटलीस्ट 2 या 3 डाले आज की टेस्ट में. थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना. ओके, नहीं आएगा तो थोड़ा गूगल कर लेना ये कैसे सॉल्व करते हैं. चेक वन रूल एट अ टाइम. जैसे मैंने बोला कि इतने सारे अपन ने रूल डिस्कस किए हैं, थोड़े ग्रामर के रूल्स भी ओपन कर लेना कि दिमाग में, अच्छा ये इसमें बैठ सकता है, ये ग्रामर का रूल इसमें बैठ सकता है. अच्छा मे बी ए एंड डी का यूज है तो वो इस हिसाब से होगा, ग्रामेटिकल ये होगा. ग्रामर के रूल्स वन बाय वन अप्लाई करके देखो. वन बाय वन सब नहीं, बट होता है ना कि जो आपको पता चला कि ये पार्ट है, शायद सेंटेंस का ये छोटा सा पार्ट है जिसमें गलती है, तो उसको अप्लाई करो, रूल लिख दो, तो यू विल गेट द आंसर. ओके, नेक्स्ट वन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैं बोल रहा था, यस, दिस वर्ब टेंस फॉर्म. तीसरे में जो सेकंड पॉइंट है, वर्ब एंड टेंस फॉर्म. शी हैज रिटन, शी हैज रोट. मैंने जब पढ़ा ना तभी मुझे आंसर आ गया. शी हैज रिटन. सो साइलेंटली और सॉफ्टली वो सेंटेंस को पढ़ो. हमेशा कैसा होता है कि वी हैव दैट हैबिट ऑफ लिसनिंग दो सेंटेंसेस, थोड़ा सा फटाक से कनेक्ट हो जाते हैं चीजों. सो ऑलवेज रीड देम. सो रीड देम साइलेंटली. अपने आप आपको समझ जाता है कि कहाँ पे वो ऑकवर्ड सिचुएशन, मिसिंग वर्ड्स या कुछ पंक्चुएशन प्रॉब्लम्स है क्या. इफ यू अंडरस्टैंड दोस प्रॉब्लम्स यू ऑलरेडी डन. सो रीड इट साइलेंटली करो. पर एक बार होता है ना मन में से फटाफट जोर से थोड़ा सा रीड कर लो, यू विल गेट द आंसर. रिफ्रेज और सिंप्लीफाई. कुछ चीजों को ना, अगर वो सेंटेंस नॉर्मल होता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अपना इंग्लिश में चलता है, बराबर है. ओके, सो इफ इट इज नॉट हैपनिंग तो उसको उस हिसाब से अरेंज करो, और इफ इट इज हैपनिंग तो उसके बीच में जो फिलर्स आ रहे हैं ना उनको अंडरस्टैंड करो. इफ दोज फिलर्स कैन बी प्रॉब्लम ऑफ योर स्पॉटिंग एरर्स. एक बार वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बीच में अगर नहीं बैठ रहा तो कहीं पे उसी में गलतियां हैं. Then watch for tricky constructions. कि tricky constructions में comparisons. She is better than him. Exactly. Modifiers only he saw the movie. He only saw the movie. Only he saw the movie. But he only saw the movie के बाद
देयर हैज टू बी सम अटैचमेंट, ही ओनली सॉ द मूवी नहीं चलेगा. इफ सम इलस्ट्रेटिव सेंटेंस आगे आ रहा है तो चलेगा. ही ओनली सॉ द मूवी इज नॉट अ सेंटेंस. अगेन तुम लोग ये दोनों जिन्होंने भी आंसर दिया, दोज हु रीड इट लाउड ना अपने आप समझ आता. तो एग्जाम में जोर से नहीं, बाजू वाले को आंसर नहीं बताना है अपना, बट थोड़ा सा ना बात कर लेना उसके बारे में. ओनली ही सॉ द मूवी, ही ओनली सॉ द मूवी. हाँ, फर्स्ट वाला सही लगता है मुझे. ओके. देन यूज ऑफ इडियोमैटिक यूसेजेस. इडियम मैंने डिफरेंट फ्रॉम, ऑफ, अबाउट, ये जो चीजें होती है ना, उसके साथ में जो भी सेंटेंस आएगा उसको अंडरस्टैंड करो. डिफरेंट फ्रॉम है, ऑफ है, अबाउट है, ये तीनों चीजें है ना, ये ध्यान रखना. whenever you come across this type of sentence ना, then you will come to know, अरे यार इसके आगे वाला सेंटेंस कनेक्टिंग चाहिए, इसके आगे वाला सेंटेंस इन अ फ्रेज जाना चाहिए. ये नहीं हो रहा, मतलब उस सेंटेंस में गलती है. ठीक है. नेक्स्ट वन. अगेन, नो एरर कैन बी योर आंसर. डोंट वरी अबाउट इट. ऐसा नहीं होता कि अरे यार नो एरर होना ही नहीं. नो एरर कैन बी आंसर. तो पहले तीन ऑप्शंस में अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं है, तो चौथा ऑप्शन नो एरर कैन बी योर आंसर. ऐसे अड़े मत रहना कि इसमें गलती होनी ही चाहिए. नॉट नेसेसरी. गलती नहीं होगी तो भी वो राइट आंसर है. सो नो एरर कैन बी योर आंसर. डोंट ओवरथिंक इट. ओके. एंड द लास्ट वन, एलिमिनेट करो. ये गलत है, एलिमिनेट. ये नहीं लगता, एलिमिनेट. ये नहीं लगता, एलिमिनेट. देन यू विल रीच टू टू और वन ऑप्शन. वन, अगर वन पे रीच होगे दैट इज आंसर. टू पे रीच हो गए तो देन थॉट प्रोसेस चालू करो अपना. सो एलिमिनेशन करो. चारों के चारों ऑप्शंस पे अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो ना, टाइम. चार ऑप्शंस में लगता नहीं है, चलो निकल निकल निकल, ये आंसर. दैट इज योर थॉट प्रोसेस. ओके. हियर लेट्स फाइंड द एरर. Each of the students are responsible for completing their own assignment. What can be there over here? A, B, C, D. What do you think, guys? Each of the students are responsible for completing their own assignments. ऐसे ही tricky questions होंगे exam में. Okay. As no one is telling, each RI, each मतलब that is for individual person. each of the students से, हजारों students में से I'm talking about one at a time. Then R नहीं आएगा, that has to come with each. Each of the student is responsible. हर एक student responsible है. Each of the student is responsible for completing their own assignment. Okay, that's obviously their assignment अगर is आ रहा है तो again यहाँ पे his or her own assignment आएगा. Okay. Sir, it is because of like statement, students are plural, so we have to use singular verb. Exactly. ठीक है. So again, एरर स्पॉटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बार सेंटेंस को पूरा का पूरा रीड करो. वंस यू गो थ्रू इट, अपने आप आपको आंसर आ जाएगा. वंस यू गो थ्रू इट ना, तुमने खुद ने भी एक बार उसको पूरा का पूरा पढ़ लिया ना, तो अपने आप कनेक्टिंग जो एरर है वो समझ आएगा. नहीं आया तो दो बार रीड करो. देन स्टार्ट एलिमिनेटिंग. अरे ये तो सही लगता है, इसको रहने दो. इससे सही लगता है, रहने दो. सही लगता है, हाँ पक्का ये एरर है. ओके, दैट इज योर आंसर. ठीक है. नेक्स्ट वन, वी हैव सेंटेंस इंप्रूवमेंट. अगेन दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों बोलूंगा? क्योंकि इसके रिलेटेड आई, सैमसंग प्लीज आप मेरी पीपीटी को एडिट मत करना. सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इस पे ना एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन व्हेन आई हैव पेड फॉर सीकैट लाइक 4-5 years ago, आई रिमेंबर there was a lot of questions related to this one. अभी तो थोड़ा वो चेंज हो गया होगा, but at least 2 questions you guys can expect on sentence improvement because they want to understand आपकी grammatical understanding कितनी अच्छी है. Okay, so for that, in a sentence improvement, again tips I'll give you very fast because most of the tips are going to be repeated. Same पहले पूरा sentence पढ़ लो. This is going to be repeated. Identifying the underlying issue. अभी sentence improvement के just let me show you. Okay. Oh sorry, this I forgot to change the name. Spotting errors नहीं है. This is sentence improvement. Okay, इसका पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. I along with my friends discussed about the chapter with our teacher. ये है क्वेश्चन. This is not spotting error. Okay, this is sentence improvement. Please forget this spotting errors वाला. So I along with my friends discussed about the chapter. उन्होंने क्या किया कि discuss about को है ना, उन्होंने ब्रैकेट किया. Okay, so now you want to tell whether you guys are able to improve the sentence. Okay,
So how you are going to think it? Discuss about के बारे में मैं क्या क्या बिठा सकता हूँ? Discussed with the chapter? No, this is wrong. Discussed to the chapter? No, again this is wrong. Discussed the chapter with our teacher? That seems perfectly fine. Now, about is an extra thing which they have added, which is not necessary over here. What we are doing, याद रखना, we are doing sentence improvement. So whatever sentence here is not wrong. मैं पहले ही बोल रहा, the sentence here is not wrong. You have to improve the sentence. आपको सेंटेंस को इम्प्रूव करना है ग्रामेटिकली, एस्थेटिकली, लेजिबली, पढ़ने के लिए भी अच्छा बनाने उसको. सो आपके दिमाग में अगर होगा ना कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट इज नॉट अ रॉन्ग सेंटेंस, इट इज अ सेंटेंस विच यू हैव टू इम्प्रूव नाइसली. ये याद रखना. सो वेरेवर यू गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस कि जिसमें आपको आएगा कि एक पूरा सेंटेंस दिया उसमें ब्रैकेट है और आपको एक अच्छा सा इम्प्रूवमेंट करना है, तो इम्प्रूवमेंट इज ऑल अबाउट को डिलीट मार दो. I along with my friends discussed the chapter with teacher. चैप्टर ही डिस्कस किए ना, अबाउट की जरूरत नहीं है यहाँ पे. Then again, how are you going to do it? Understand your own understanding of these situations. Okay. Then I'll go back again. फिर मैं जाता हूँ. So don't consider sentence improvement में गलत सेंटेंस नहीं दिया जाएगा. सेंटेंस which will need an addition. अच्छा लगने के लिए क्या कर सकते हो? Okay. आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग इशू. अभी इशू क्या था हमारा? अब तो हमने एक्स्ट्रा वाला अबाउट आ गया था हमारे इसमें. सो पढ़ने में भी अच्छा लगता है ना. आई अलॉन्ग विद माय फ्रेंड डिस्कस द टॉपिक विद माय फैकल्टी, विद माय टीचर. दैट इज मच इजियर डिस्कस अबाउट से. ओके. सो अगेन यहाँ पे बहुत से लोग नो एरर करके जाएंगे. देयर इज नो नीड ऑफ नो एरर्स. नो एरर इज नॉट एन आंसर. अबाउट वाज द आंसर. अबाउट वाज टू बी डिलीटेड. ओके. इट इज अ ग्रामर एरर है तुम्हारा, क्लैरिटी और स्टाइल का इशू हो रहा है तुम्हारे, या ईडियम और का कुछ प्रॉब्लम है. अगेन ग्रामर एरर है तो सब्जेक्ट वर्ब की अरेंज एग्रीमेंट हो रही है कि नहीं, मतलब वो अपना वर्ब किस उस फॉर्म में है कि नहीं, टेंस अच्छे से जा रहा है, प्रोनाउंस अच्छे से यूज हो रहा है कि नहीं. ही है और आगे हर लिखा है कहीं पे जाके, शी है तो आगे हिम लिखा है कहीं पे आगे जाके. इट इज रॉन्ग. ओके. तो यू हैव टू रीअरेंज इट नाइसली. ओके. सेकेंड वन, कंपेयर द कंसाइजनेस एंड क्लैरिटी. क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है सेंटेंस की. अबाउट से कुछ इशू नहीं था मुझे. अबाउट से आई हैव नो इशू, बट अबाउट इज एक्सेस. आई वांट टू इंप्रूव इट. सो एक्सेस है इसलिए उसको निकाल देना है बस. ओके. नेक्स्ट वन, पैरेलल स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट. पैरेलल स्ट्रक्चर मतलब कि जो सेंटेंसेस दो तीन है ना, बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जो चीज है ना वो एक साथ आएगी, और वो एक साथ आएगी तो दे आर गोइंग टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन. ये आएगा तो उसके साथ ये भी आएगा. मतलब आप अगर होता है ना छोले लोगे तो उसके साथ भटूरे खानी ही आप, समथिंग लाइक दैट. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. So like I just not only like choles but also bhatures are very nice. So what is happening over here? These are two different things which are giving you nice connection and they are together. Chole and bhature are together words. So something like that over here. Okay. Idioms अच्छे से फॉलो करो. preposition का uses I believe आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सब पता है. पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूसेज प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं यहाँ पे चेक करो. ओके. एडवर्ब, verbs, adverbs, voices, वो सब अच्छे से यूज हो रहे हैं. you guys have to check it. Okay. Next one, transition and modifiers. क्या होते हैं? Transitions are those की सेंटेंस अच्छे से एक डायरेक्शन में जा रहा था बट आया however आया और सेंटेंस का डायरेक्शन अचानक से चेंज हुआ. तो दैट्स अ ट्रांजिशन एंड मॉडिफायर्स. ऐसी चीजें जो सेंटेंस को आके मीनिंग बदल रही है. रिमेंबर, रीड इट, अंडरस्टैंड द सेंटेंस, देन ओनली गो फॉर इट. ओके. पैरेलल आंसर चॉइसेस. पैरेलल आंसर चॉइसेस मतलब क्या कि आपका सेंटेंस एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, आपको पता है अच्छे से, सब अच्छे से जा रहा है, देन डेफिनेटली अलोंग विद इट आ गया, फर्दर मोर आ गया. ओके. ये चीजें क्या करेगी? ये चीजें और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देगी. तो पैरेलल एंड चॉइसेस एक साथ में अगर दूसरा भी आ रहा है ना तो ये पक्का पॉजिटिविटी में जा रहा है तो पॉजिटिव ले लो. निगेटिव जा रहा है तो पक्का निगेटिव ही जाएगा आगे सेंटेंस विद दिस वर्ड्स, फिलर वर्ड्स. तो उसको बस थोड़ा सा पढ़ पढ़ के अंडरस्टैंड कर लो. ओके. अगेन जो चीजें नहीं लगती डिलीट मार दो. चॉइसेस एलिमिनेट. ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत. अच्छा ठीक है, ये चारों गलत है, आई एम डन विद इट, देन आई एम गोइंग टू मूव. ओके. उसमें से कोई एक आंसर आपका राइट होगा. चारों गलत होंगे, एक आंसर राइट होगा. एंड नो चेंज कैन बी योर आंसर अगेन.
डू बिलीव इन योरसेल्फ कि करो, बिलीव करो कि नो चेंज कैन आल्सो बी एन आंसर. सो दैट शुड नॉट हैपन कि अरे नो चेंज आंसर नहीं होता, हो सकता है. अगर आपको लगता है तीनों ऑप्शन सही है ऊपर के, तो चौथा ऑप्शन नो आंसर कैन बी योर आंसर. ओके. Then the next one is word substitution. Word substitution is something कि जिसमें आपको एक blank space दिया जाएगा and you will be asked to put something into this one. एक word को put करना को आपको बोला जाएगा. एक word, phrase, idiom या फिर कुछ combination of 2-3 words or something you will be asked. Again same, पहले क्या करना है, understand the context. Sentence को पढ़ो, sentence कहना क्या चाहता है वो देखो. This will be like fill in the blanks, kind of fill in the blanks. Okay, word substitution is fill in the blanks. देन उसका टोन समझो, फिर नीचे की चारों ऑप्शंस पढ़े. कभी कभी ऐसा होगा ना वो चारों ऑप्शन पता नहीं होंगे, आई एम टेलिंग यू. उसमें भी व्हाट आई यूज्ड टू डू इज उसमें भी सेंटेंस को पढ़ लो, देन अगेन 4 ऑप्शंस को पढ़ लो, और ऑप्शन से अगर सिमिलरिटी कुछ आ रही है, आपको ये वर्ड सुना सुना सा लग रहा है और ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वर्ड लग रहा है, तो दैट कैन बी योर आंसर. सो अगेन अंडरस्टैंडिंग द सेंटिमेंट ऑफ सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट, और उसके ऊपर कौन सा वर्ड जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, क्रिटिक्स, समथिंग, एनीथिंग व्हिच इज फिटिंग, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, दैट कैन बी योर आंसर. ओके. अगेन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये दोनों चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि वो जो वर्ड होगा ना उसमें सिनोनिम आगे पीछे का सेंटेंस पढ़ के तुमको समझेगा, अच्छा हाँ ये सही है, इसमें चल जाएगा ये. ओके. ग्रामर इज अगेन इंपॉर्टेंट. आप जो भी सेंटेंस पुट कर रहे हो उसके ग्रामर और उसका ही फॉर्म यू गाइस हैव टू यूज इन नो. अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में चल रहा है तो इज आर यहाँ पे नहीं आएगा, वॉज एंड वेर ही आएगा, बराबर है. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर. नेक्स्ट वन, इंटेंसिटी. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत सी गलतियां हो जाती है. सेंटेंस अगर किसी के बारे में बहुत एक्सट्रीमली अच्छा बता रहा है, दैट इज एक्सलेंट, प्रोफिशिएंट, मार्वेलस, ऐसा चीजें बता रहा है, सो आप सिंपल गुड, नाइस नहीं बोल सकते उसमें. The sentence is giving you the highest degree of intensity to that verb, to that subject, then you cannot use the simple forms of them. They have to use the highest forms of them. ये याद रखना. ये बहुत बार होता है यार, सर मैंने चारों ऑप्शंस थे, पर चारों ऑप्शंस में ना वो गुड वाला मैं करके आया, बट एक्सीलेंट आंसर कैसे आया? कैसे आया इज दिस, सेंटेंस की इंटेंसिटी पढ़ो. सेंटेंस हाई इंटेंस है तो आंसर भी हाई इंटेंसिटी वाला ही होना चाहिए. ओके. नेक्स्ट वन, कोलोकेशंस. अगेन कोलोकेशंस मैंने जैसे बोला था कि कॉम्बिनेशंस ऑफ सम वर्ड्स व्हिच आर क्लब टुगेदर, व्हिच गो हैंड इन हैंड, मेक अ डिसीजन रादर देन डू अ डिसीजन. ओके. जो मैंने एग्जांपल्स पहले दिए थे, सिमिलर आर द एग्जांपल्स. यूज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नियर बाय वर्ड्स. आगे पीछे क्या है देख लो, आगे वाला वर्ड कैसा था, पीछे वाला वर्ड कैसा है, कॉम्बिनेशन पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, समथिंग लाइक दैट. शी स्पोक इन अ डॉट डॉट टोन. सिंपल एग्जांपल, लास्ट सेंटेंस पढ़ लो. शी स्पोक इन अ डॉट डॉट टोन. डॉट डॉट टोन मतलब वो टोन के बारे में बात हो रही है. टोन मतलब शी स्पोक समथिंग अबाउट समथिंग, किसी से बात हुई, किसी बारे में बात की. नाउ टोन मतलब वो क्या क्या टोन हो सकते हैं, तो सॉफ्ट, हार्श, फर्म, बराबर है, ऐसे वर्ड आना चाहिए. सो टोन रिलेटेड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव, तो ज्यादा एडजेक्टिव्स रिलेटेड टोन. सो टोन्स कैसे कैसे, मेरी मम्मी ने मुझसे बहुत हार्शली बात की, मम्मी ने मुझे पीटा उसके बाद. ओके. सो मम्मी ने, माय मदर स्पोक इन अ डॉट डॉट टोन एंड शी स्लैप्ड मी. तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा आप बताओ. माय मदर स्पोक इन अ हार्श टोन एंड देन शी स्लैप्ड मी. बराबर है, गुस्सा होगी तो भी मारेगी मेरे को. It's not necessary she spoke in a very nice and lovely tone and then slapped me. Not going to happen, right? So you have to understand the meaning and उस word के related adjectives ही डालो यहाँ पे. उस word के against जा रहे हैं adjective तो they are not useful. I guess this one is the last one. Then we have the last one is the sentence arrangement. Okay. Now, what is sentence arrangement? कि आप लोगों ने एक sentence अभी बना लिया, ठीक है, पक्का सा. मैंने जो बोला था कि सबसे पहले वाला था कि आपको एक दो टाइप होगी इसमें. एक तो यू विल हैव वन ओनली सेंटेंस व्हिच विल बी ब्रोकन इनटू 3 to 4 कैटेगरीज, 3 to 4 small सेगमेंट्स, एंड यू जस्ट हैव टू अरेंज इट नाइसली. और यू विल गेट अ होल पैराग्राफ जिसमें से 4 अलग अलग सेंटेंस होंगे और उनको आपको ऊपर नीचे करना है. If you guys remember, जो मैंने पैराग्राफ पहले we have discussed about रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का पैरा अगर मैं ऊपर नीचे कर दूं
then you guys have to rearrange it again. That is a sentence array. So these are the two different types over here. First one, again tips over here, identifying. पहले तो what I'll do, I'll just understand the flow of कि वो चार सेंटेंसेस से ना वो कहना क्या चाहते हैं, what are the sentences about, पहले वो अंडरस्टैंड करो. देन सेकंड थिंग, उसमें जो कनेक्टर्स है, अगर वो वर्ड्स के बाद अगर सेम सेंटेंस है देन विल टॉक अबाउट कनेक्टर्स कि वो बट, बिकॉज, वेन, एंड ऐसी चीजें आ रही तो पक्का मुझे पता है कि ये कनेक्ट करने वाली चीज है. तो ये उसके बाद एक सेंटेंस आएगा, उसके पहले एक सेंटेंस आएगा, मतलब वर्ड्स आएंगे दैट वी हैव टू कनेक्ट. ओके, then this is again very important, look for the time makers. what are time makers? कि ये चीजें ना कभी कभी सेंटेंस के एकदम स्टार्ट में आती है या फिर कॉमा के बाद आती है. ओके, yesterday I went to movie which was very nice, definitely. Then again, today I am thinking of going to my home early. Okay, tomorrow I'll be doing this thing. Barabar? So most of the time these are the words which come at the start or after the comma, connecting वाले sentence होते हैं. ओके, स्टार्टर सेंटेंस होते हैं, वर्ड्स होते हैं. सो यू गाइस याद रखो कि बाबा हाँ ये चीजें पहले आएंगे. फर्स्ट आई वेंट टू द स्टोर, देन आई मेट माय फ्रेंड. ठीक है, तो ये यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना, यू हैव टू रिमेम्बर कि ये पहले आते हैं क्या, उनसे कैसे कनेक्ट करना है, ऑल दैट. ओके, नेक्स्ट वन, चेंज द सॉरी चेक फॉर द एग्रीमेंट. सेंटेंस कहना क्या चाहता है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. वो पहले तो ग्रामर यू गाइस हैव टू सी कि पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑफ वर्ब की एग्रीमेंट है कि नहीं. तो शी प्लेज, शी प्ले नहीं होता. दैट यू ऑलरेडी नो. ग्रामेटिकल थोड़ा सा अंडरस्टैंड यू गाइस हैव टू डू, देन बेस्ड ऑन दैट यू विल बी एबल टू डू इट. ओके, लास्ट वन, थिंक लॉजिकली. बहुत इंपॉर्टेंट है कि कनेक्ट अगर चलो एक ही सेंटेंस है तो यू विल बी एबल टू डू इट वेरी इजीली. थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे, क्योंकि 5-6 ही वर्ड्स होंगे, यू जस्ट हैव टू शफल देम, यू विल बी एबल टू डू इट. बट अगर होल पैरा है और जिसमें 5-6 लाइन्स है, देन व्हाट यू गोइंग टू डू, लॉजिकली थिंक करो. वो से क्या हुआ, फर्स्टली आई ओपन द डोर, then I walked to the chair, then I sat on the chair, then I opened my laptop and now I started the session. This was happened, right? So एक लॉजिक दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि इस पैराग्राफ में पहले ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है, एक टाइमलाइन आ जाएगी दिमाग में, then only able to solve. Again, this will be for 1 or 2 marks. इसमें दो क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि सिमिलर, एक तो वर्ड अरेंजमेंट वाला या फिर पैरा अरेंजमेंट वाला. You guys have to be very careful कि वो कैसे सॉल्व करना है. Then again, पंक्चुएशन का यूज प्रॉपरली करो, बिकॉज दे आर गोइंग टू गिव यू कॉमा के बाद आने वाला सेंटेंस, कॉमा से पहले आने वाला सेंटेंस, कंप्लीशन वाला सेंटेंस. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इट. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस. ओके, फर्स्ट वन इज अ जंबल वर्ड्स. ये मैंने टाइप्स बना के रखे यहाँ पे, तीनों टाइप्स आए आपको, यू गाइस गो थ्रू इट. ओके, जंबल वर्ड्स. इन द टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल बी एबल टू गेट अ जंबल्ड वर्ड्स. यू गाइस हैव टू रीअरेंज. द स्काई, द इज ब्यूटीफुल स्काई टुडे. So I definitely know the sky is beautiful today. Okay, important over here is you guys have to know that अगर वर्ड्स को मुझे अरेंज करना है तो वो थोड़ा सेंटेंस पहले उस वर्ड्स को पढ़ लो फटाफट से, आपको पता चल जाएगा अरे अच्छा बेस्ड ऑन दिस इज गोइंग टू हैपन. देन लास्ट वन, रीऑर्डरिंग द सेंटेंसेस इन पैराग्राफ्स. पूरा का पूरा पैराग्राफ में 3-4 सेंटेंसेस दिए जाएंगे. व्हाट यू एक्सपेक्टेड टू डू इज यू हैव टू अरेंज देम नाइसली. He opened the door, walked into the room. There was a light noise coming from the other side. As he entered, he looked around cautiously. Okay? कहीं तो नॉइज है, फिर दरवाजा खोला गया है, then he entered it. कुछ तो समझ आ रहा है. Okay? मुझे ये तो पता चल गया कि सेंटेंस 1 and 3 जो है ना वो एक दूसरे के बाद आएंगे. सेंटेंस as he opened the door, बस I am confused with sentence 2. ये कहाँ पे रखना है? उसने दरवाजा क्यों खोला is a meaning of sentence 2. So what I can do, कहीं से आवाज आ रही थी, सो इसलिए उसने दरवाजा खोला, रूम में चला गया, एंड रूम के अंदर जाके ही सॉ समथिंग कॉशियसली. ही लुक्ड अराउंड कॉशियसली, एकदम एकदम केयरफुली उसने देखा यहाँ. अगेन द थॉट प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, फ्लो अगेन इंपॉर्टेंट, कैसे हो रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर, क्यों हो रहा है इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर. यू विल बी एबल टू आंसर इट. Simple. So this was, I guess, roughly the whole syllabus of English that you guys can expect. Idioms and phrases, I didn't do it. So idioms and phrases are all about तुम लोग को कितनी idioms पता है. So I'll believe once in a blue moon, या फिर
काउच पोटैटो की idioms है ना, बेसिक ग्रामेटिकल idioms देख लो थोड़े से. So these idioms can come कि what is the meaning of this idiom. So अभी क्या कितना idioms में include करूँगा ना इसमें. So I didn't add it. You guys can go through idioms. Given mostly use 50 idioms करके Google में search करो. So you'll be get 50 idioms. उसको थोड़ा सा दिमाग में याद कर लो. These are the idioms which you will be able to you might get in your examination. So like around 50 idioms करके जाओ, उसमें से most probably if you're lucky you'll get 1 or 2 idioms to solve. अगेन एक्सपेक्ट सिनोनिम एंटोनिम पे एक पक्का क्वेश्चन होगा, एक इडियम फ्रेजेस पे पक्का क्वेश्चन होगा, और इसमें से भी रफली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विल गिव यू एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस फॉर श्योर. सेंटेंस कंप्लीशन, इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स एंड वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैन हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 2 questions for sure. Sentence arrangement can have 1 or 2 questions. So comprehension and sentence arrangement will go 1 or 2 questions, more than 1 question rather, and all others you guys can expect 1 to 1 question out. Okay. So now this is about it. So as per my expectations, networking, I'll start with section B. So networking is the first topic. Networking, you guys can expect 5 to 7 questions on this one. 5 to 7. Then you have C programming. You guys can roughly expect 9 to 12 questions on C programming. I'm telling slow so that you guys can write down. Data structures, again 9 to 13 questions based on who sets the paper. Data structures 9 to 13. Then object-oriented programming, OOPS using CPP. That is around the same as data structures, 9 to 13 questions on OOPS. Then we have operating system concepts, that OS concepts. You guys can expect around 3 to 8 questions on this one. And then basics of big data and artificial intelligence that Nisha just told you about. That will be, again, you guys can expect at 9 to 13 questions. Big data and artificial intelligence, 9 to 13 questions. Okay. So roughly if you guys can go this थोड़ा ऊपर नीचे करके सब कुछ 50 में आ जाता है. सो इफ डेटा स्ट्रक्चर के 12 आ गए तो समवेयर सी प्रोग्रामिंग के 7-8 आएंगे, तो वो कॉम्बिनेशन में बराबर 50 बैठ जाएगा. ओके. फॉर सेक्शन ए, इंग्लिश, section A, English will roughly have 15 to 17 questions. Again, that is very huge chunk because A section, I'll tell you tricks and कैसे करना है उस पे काम. Then reasoning, you guys can expect around again 9 to 13 questions. Reasoning. Then we have quantitative aptitude, again same as English, very heavy section. Quantitative aptitude, you guys can expect roughly 15 to 18 questions, 15 से 18, 15 to 18. And then last one we have is a computer fundamentals and concepts of programming. Computer fundamentals and concepts of programming, nearly 8 to 12 questions. Okay, then this whole section goes to 50. So these are our channels, CDAC Mumbai training. Then we have WhatsApp channel over here, CDAC Mumbai, Instagram and YouTube channel over here. So you guys already know the YouTube channel. You guys can get all the links over here. From then, please do go over there. We have uploaded roughly preparation series twice. We have uploaded preparation series last time also. There are a lot of questions discussed in that series. So एक बार preparation series का जो दूसरा वीडियो की segment है, 6 महीने पहले वाले segment को जाओ on YouTube, you will find so many question discussed in previous. This time we are discussing the syllabus and question patterns over here. Last time हमने question discuss. So एक बार वो सभी go through कर लेना. Again, tomorrow we will have 1, 2, 3 at 3 p.m. 1, 2 and 3 of July at 3 p.m. we'll post the links of full 300 marks का papers, that is 100 questions वाले section A and section B के mock test होंगे कल 3 बजे, परसों 3 बजे, and after that is 1st July, 2nd July and 3rd July. Do appear it. If you're scoring good in it, you will be very confident कि आपका वहाँ पे भी score आएगा. Okay, so do appear for tomorrow. Then thank you so much everyone. This was again nice discussion. I believe all of you people have learned something, and please, I believe you should score a lot in English or whatever the things we have discussed over here, because this was the whole series of agenda of this series was to make you aware of all the syllabus and what kind of questions you guys can expect and how you guys are going to answer those questions. So that was our agenda, and I believe we have fulfilled all that. We had
Shweta Mehle. She has been organizing